पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंपल epithelial tissue. In that tissue we discussed three types of tissues. Number one, squamous, simple squamous epithelium. Simple means when we have a single layer of cells and the cell shape is flat. Then we have learned about one more type of tissue, that is cuboidal. Simple cuboidal epithelial tissue. Why it is simple? Because it is made up of single layer. Why it is cuboidal? Because the shape of cell is cuboid. Number third, simple columnar epithelial tissue. The pillar-like structure, the cylindrical structure. And simple, why simple? Because one layer of cells. And all the three types of cells are resting on base membrane. Every tissue, either it is squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, or columnar epithelial tissue, all the three are resting on a membrane called base membrane. Now, let us take today compound epithelial tissue or stratified epithelial tissue. There is nothing to do, just in simple we have only one layer of tissue, one layer of cells. In this compound there are many layers together. Shapes are same. Shapes are going to remain same, but layers are different. Like number 1 point, we can write here stratified squamous epithelial tissue, शॉर्ट में लिखेंगे ET. अभी कैसे दिखाई दे रहा है सर? जहाँ स्क्वैमोस है तो ये सेल सारे हैं फ्लैट. Every cell is going to be flat with the prominent nucleus. Yes, sir. Now let us draw the one more flat layer like a brick wall, like this. We have two layers. Then again let us draw one more layer, one more layer, one more layer, one more layer. Sir, stratified squamous epithelial tissue. अगर खाली हम इस लेयर को लेंगे बेटा, then this is simple squamous epithelium. But यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर सेल्स लेयर में है. सेल्स ऑफ लेयर्स, वन लेयर ऑफ सेल्स, सेकंड लेयर ऑफ सेल्स, थर्ड लेयर ऑफ सेल्स, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. When we have a layer of cells like brick wall, then the epithelial tissue is called stratified squamous epithelial tissue. इसके दो टाइप्स फर्दर है. चलो यहाँ पे ही हम कर देंगे. इसमें एक टाइप है केराटिनाइज्ड squamous epithelial tissue. It is not in your NCERT. Then second one is non-keratinized.
स्पेलिंग आपकी मर्जी, ज़ड लिखो, एस लिखो। नॉन केराटिनाइजर। केराटिन जैसे बोल रहे कि स्किन जो है, मेरे बाल जो है गिर रहे हैं, बाल घने हैं वगैरह, ये केराटिन की वजह से। केराटिन होता है अमाउंट इन द स्किन। जो केराटिन है, इस हथेली को लेंगे आप, पाम, PALM, इसमें जितना भी पानी डालेंगे बेटा इस हाथ में, वो पानी अंदर नहीं जाएगा टिश्यू में, वो ऑर्गन में नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज इम्परमिएबल और इम्परवियस टू वाटर। कभी पानी यहाँ डाल दो, आपको बिल्कुल ड्रॉप जैसे नजर आएंगे ऊपर हाथ के। तो हमारे हाथ की पाम, हमारा स्किन, चेहरे का स्किन, इट इज केराटिनाइज्ड और इट क्रिएट्स फ्रिक्शन। तभी तो मैं अपने हाथों से कोई चीज पकड़ पाता हूँ, तभी मैं अपने हाथों में पेन लेता हूँ और लिख पाता हूँ। तो इसमें एक फ्रिक्शन जो पढ़ा है हमने, एक फ्रिक्शन एक किस्म का क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मैं लिख पाता हूँ, काम कर पाता हूँ। आई कैन होल्ड द थिंग्स बिकॉज ऑफ द क्रिएटिन लेवल और क्रिएटिन डिपोजिशन। इनके ऊपर, पाम, फेस के ऊपर इस केराटिन की डिपोजिशन होती है, इसलिए उस टिश्यू को बोलेंगे केराटिनाइज्ड। बिकॉज केराटिन जो है वो केराटिनोसाइट्स की बनी होती है। मैं लिख दूं, उन सेल्स को बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स यही सेल्स जो हैं हमारे पाम को बनाते हैं थोड़ा रफ, और हमारे स्किन पे पानी टपकता है, टिकता नहीं है। It flows, it rolls down from our cheek because of the keratin deposition. तो हमारे चेहरे पर है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम है, लेकिन ये वाला एपिथेलियम हमारे पास है केराटिनाइज्ड। दूसरा, दैट मीन्स इसके ऊपर मार्जिन केराटिन की डिपोजिशन है, केराटिन लेयर की डिपोजिशन है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो या हमारा चेहरा ये रहता है इम्परमिएबल। परमिएबल मीन्स परमिशन, एंटर कर रहा है। यू कैन नॉट बी परमिटेड, मतलब यू आर नॉट अलाउड। बट इफ वी कैन से यू आर परमिटेड, देन यू आर अलाउड। Same is the case. While there is keratin, it never permits water to absorb. It never permits water to percolate. It never allows water to get absorbed. It just keeps the water content flows over it. पानी फ्लो कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पे केराटिन लेयर लगी है। अगर मेरे हाथ में केराटिन लेयर ना लगी होती तो मैं किसी चीज़ को नहीं उठा पाता। मेरे हाथ जो है, लाइक आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ तुम वन ये मल का तान, लाइक पूजिस नश गसान क्रैनमाज वगैरह वो चीज़ें लाते हैं, तो बिल्कुल वो स्मूथ होते हैं, तो हम उनको हाथ में नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो चीज़ रफ नजर आएगी वो आपको, उसको हम होल्ड कर पाएंगे, है ना। सुजास वो होता है फिलिंग्स के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर स्मूथनेस होती है। दैट इज वाई हम अपना खाना जो है उतार पाते हैं थ्रू आवर एसोफेगस, देन इनटू द स्टमक, देन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लेट सो ऑन एंड सो फॉर, एब्जॉर्प्शन के लिए, एसिमिलेशन के लिए, डाइजेशन के लिए। तो हमारे पास दो किस्म के स्क्वैमोस एपिथेलियम है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड क्यों बोलेंगे सर? मल्टी लेयर है, लेयर्स और मल्टीपल, बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए बोलेंगे इसको स्ट्रैटिफाइड।
एग्जाम्पल लिखेंगे आप यहाँ पे पाम, एग्जाम्पल लिखेंगे आप फेस, स्किन, यहाँ पे होता है केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमोस। अब नॉन केराटिनाइज्ड उस एपिथेलियल टिश्यू को बोलेंगे जिस पे लेयर्स तो हैं, बहुत सारी लेयर बनी हैं, लेकिन केराटिन डिपोजिशन नहीं हुई है। जिस टिश्यू में केराटिन डिपोजिशन नहीं हुई है उसको बोलेंगे हम नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। नॉन केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelial tissue. Why squamous? Because cells are flat. Why stratified? Because cells are multi-layered. क्लियर हुआ? आगे जाएंगे। एग्जाम्पल यहां लिखेंगे आप फेरिंगस। फेरिंगस किसको बोलेंगे? मैं आपको बता दूं, हमारे माउथ के बाद एक कॉमन पैसेज होती है, माउथ के बाद एक कॉमन पैसेज होती है। बाहर से आपको दिख रहा है नाक से ईयर जा रही है और मुंह से खाना जा रहा है, लेकिन आगे ये दोनों एक ही पाइप में जाते हैं, खाना भी और ईयर भी। उस पाइप को फेरिंक्स बोलते हैं। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ ईयर एंड फूड। तो इस फेरिंक्स में आपको मिलेगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर हो रहा है? क्या है? फ्लैट। फ्लैट के लिए हम क्या नाम देते हैं? स्क्वैमोस। सर अगर सिंगल लेयर होगी तो सिंपल, लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारी लेयर है तो आर कंपाउंड। क्लियर? आगे जाएंगे। Now, let us take the another type of compound tissue. We do have stratified and cuboidal ET. सिंपल है, स्ट्रैटिफाइड है, कंपाउंड है, क्यूबॉइडल है। If I am drawing this type of cell, again this type of cell, again this type of cell, sir, again this type of cell. I initially forgot to mention the base membrane. Every tissue is rested on base membrane. तो यहाँ पे base membrane है, तो बेटा एक ही लेयर है। जब एक ही लेयर है तो क्या लिखेंगे? सिंपल। शक्ल कौन सी है? शेप क्यूबॉइडल है, तो लिखेंगे बेटा क्यूबॉइडल। सर इट इज सिंपल क्यूबॉइडल। If I draw like this, one more layer, again one more layer, then sir stratified cuboidal epithelial tissue. Clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। Just shape is same but layers are many, multiple layers हैं, बहुत सारी लेयर्स है, और नाम बदल दिया साइंस ने। क्या हमें साइंस बेवकूफ बनाता है? एक लेयर हो तो सिंपल, बहुत सारी लेयर है तो कंपाउंड। एंड एवरी टिश्यू इज रेस्टिंग ऑन बेस मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल आप खुद ढूंढेंगे, मैं लिख दूं, फिलहाल मैं लिख दूं। जो हमारा बेटा ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं,
लाइक हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, थायराइड वगैरह, ये सारे ग्लैंड। इन ग्लैंड्स की लाइनिंग पे आपको ये वाला टिश्यू नजर आएगा, लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स, उनके पास आपको मिलेगा बेटा स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। In a hurry, in a jiffy, one more type. Let's move towards one more type is our, क्या हो सकता है? Columnar, पहले stratified, columnar epithelial tissue. The cell should be pillar-like, and its nucleus is at the bottom. Again, pillar-like. Again pillar-like, again pillar-like. Sir, it is single layer. Then it is simple columnar epithelial tissue. अब सर इसके आगे जाओ, इसके आगे जाओ, इसके आगे बना दो आप। चलो इससे बनाते हैं एक और लंबा टावर बनाएंगे, लंबा टावर। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, इनका न्यूक्लियस बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए। आगे जाएंगे लाइक दिस, एंड अगेन वी हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू।